बीच में प्रभाकर त्रिपाठी जो कि ऑनरेबल डीआईजी है सीआरपीएफ डिब्रूगढ़। हमारे बीच में ज्योति जी कानोई डांगोरिया जो कि एक नामी ग्रामी चार्टर्ड अकाउंटेंट और टी प्लांटर्स भी हैं। हम सब जानते हैं कि कानोई जो कॉलेज है इनकी फैमिली से वो लेगेसी वो अभी रखा हुआ है, वही अभी चला हुआ है। भाई साहब अभी का जो जनरेशन का हेड है। तो हमारे बीच में परम आदरणीय बीके विनीता दीदी जी जो कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट तथा खुंसा की प्रभारी हैं, और हमारे बीच में धनीराम भाई जी, उनको भी स्वागत कर लिया है। अभी हम विधान भाई जी, बीके विधान भाई। সেইটো আমি এটামান বছৰ লাগিব অলপ হিন্দীত ভাষণ দিব পৰাকৈ। তো আজি আমাৰ মুখ্য অতিথি ৰূপে আমন্ত্ৰিত কৰা প্ৰভাকৰ ত্ৰিপাঠীজী, যি ডিআইজি 171 বেটেলিয়ানৰ ডিআইজি ডিব্ৰুগড় অৱস্থিত, মনোজ কানৈ ডাঙৰীয়া, জ্যোতি কানৈ ডাঙৰীয়া, তেখেত পেছাত এজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, বহুতো চাহ বাগিচাৰ মালিকো হয় বুলি জানো, আৰু তেখেত ডিব্ৰুগড়ত খুব পপুলাৰ মানুহ। তথা আমন্ত্ৰিত কৰি অহা ব্ৰহ্মকুমাৰীলৈ প্ৰথম যিসকল আহিছে এই সকলো মাতাসকল, ভাইসকল, বায়ানসকল কি আছে তাৰে দুআষাৰ আপোনালোকক জনাবলৈ থিয় হৈছোঁ। কথা হ'ল আজিৰ দিনটোতেই বা কোৱা হয় 1937 বৰ্ষত পৰম পিতা পৰমাত্মাই প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰৰ দিব্য অৱতৰণ হৈছিল, আৰু সেই দিনটোৰ স্মৃতিস্বৰূপে আজি আমি মহাশিৱৰাত্ৰি হিচাপেও পালন কৰোঁ, শিৱ জয়ন্তী হিচাপেও কওঁ। আৰু এই অৱতৰণৰ পিছতেই আমাক পৰম পিতাই বহুতখিনি জ্ঞান দি গৈছে। ব্ৰহ্মা বাবাৰ মুখেৰে, কমল মুখেৰে আমাক বহুতখিনি জ্ঞান দিছে। তেখেতৰ নিজৰ পৰিচয় দিলে, আৰু জীৱন কি বস্তু, জীৱন কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, এই জীৱনত সুখ শান্তি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ, আৰু সেই সংসাৰৰ পিছতো আমি কি লভিব পাৰিম, সেইখিনি পথ আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছে বা দেখুৱাইছে। আনকি এতিয়াও আমাক সেইখিনি ধ্যান দি আছে। তেতিয়া পৰম পিতা পৰমাত্মা শিৱ বাবাই তেখেতক বহুতখিনি ক'লে, আৰু এনেকুৱা এটা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্থাপনাৰ তেখেতে মনস্থ কৰিলে। প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় বৰ্তমানৰ হায়দৰাবাদ চীন প্ৰদেশত প্ৰথমে স্থাপনা হৈছিল, যি এতিয়া পাকিস্তানত অৱস্থিত। 1937 চনতেই স্থাপন হৈছিল। দেশ বিভাজনৰ পিছত সেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তৰিত কৰিলে আমাৰ বৰ্তমানৰ আবু পৰ্বতত, ৰাজস্থানৰ আজু পৰ্বতত, আৰু এই প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় হিচাপে আবু পৰ্বততেই অৱস্থিত।
এই বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা বহুতখিনি আগুৱাই গৈছে, বহুতখিনি কাম কৰি গৈছে। 1951 চনতেই যেতিয়া স্থানান্তৰিত হ'ল, তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষতে নহ'লে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত ইয়াৰ আশা প্ৰশাখা বিস্তাৰিত হ'ল। বৰ্তমান প্ৰায় 4,500ৰো সদৃশ আশা প্ৰশাখা আছে আমাৰ এই ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত, আৰু সেয়া 140খন দেশত বিস্তাৰিত হৈ আছে। এইখিনি অনলি পঞ্জীভুক্ত হ'ব, যিবিলাক পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে সেইবিলাকৰ। পঞ্জীয়ন নোহোৱা আৰু অনেক আছে। বৰ্তমান আমাৰ এই প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য প্ৰশাসিকা হ'ল ৰাজযোগিনী BK মোহিনী দিদিজী। ইয়াৰ আগতে তেওঁ USA প্ৰশাসিকাৰ পদ আছিল। আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মাউণ্ট আবুত যিটো অৱস্থিত, তাত বিভিন্ন শাখা, বিভিন্ন উইংছ আছে। এইখন এটা বৃহৎ এটা কাৰ্যালয়, তাত 22টা উইংছ আছে। তাৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব এইখন মধুবন বা শান্তিবনত যিটো বিস্তৃত হৈ আছে, এইখন কিমান ডাঙৰ বা তাক শাসন কৰাটো কিমান হেৰি। মুখ্য হেৰিঙৰ ভিতৰত যদি কওঁ, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ উইংছটো আছেই, মেডিকেল উইংছ আছে, সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং উইংছ আছে, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ উইং আছে। এনেধৰণৰ মুঠ 22টা উইং তাত আছে। প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় গোটেই বিশ্বতেই শান্তিৰ হকে কাম কৰি আছে, আৰু তাৰ ফলত আমাক বহুতো পুৰস্কাৰো আমাক প্ৰদান কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা বহুত প্ৰদান কৰিছে, আনকি UN-ৰ ফালৰ পৰাও শান্তিৰ হকে অবিৰতভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আমাক পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ৰাজযোগ, মেডিটেশ্যনৰ শিক্ষা আৰু মূল্যনিষ্ঠ শিক্ষা প্ৰদান কৰা। তাৰ যোগেদি গোটেই বিশ্বত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা, শান্তি বিয়পোৱাৰ এটা লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়ি আছে। ইয়াত সকলো ভাষাৰ, সকলো ধৰ্মৰ, সকলো বয়সৰ কোনো উচ্চ নিচ ভেদাভেদ নোহোৱাকৈ ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয়। মই আহ্বান কৰিম, নিজেও সেই সংগঠনৰ লগত জড়িত কৰি খুব শান্তি অনুভৱ কৰি আছোঁ। এতিয়া নিজকে নিজে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোক যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে, মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ লগত আপোনালোকে জড়িত থাকক, নিজে শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ, আৰু আনকো, আমাক বিশ্বকো পৰিৱৰ্তনৰ দায়িত্ব দিছে। আমি স্ব-পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা বিশ্ব পৰিৱৰ্তন আমি কৰিব লাগিব, সেইখিনি আমাৰ দায়িত্বও আছে। গতিকে নিজেই পৰিৱৰ্তন হ'লে আমাৰ পৰিয়ালত পৰিৱৰ্তন হ'ব, শান্তি হ'ব, সমাজখনত হ'ব, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হ'ব, বিশ্বত হ'ব। গতিকে আমি সেই সংকল্প লৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ অনুৰোধ জনাব, যিসকল অহা নাই। ওম শান্তি। অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ দণ্ডিৰাম ভাইজীক। তেখেতে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হোৱা প্ৰায় এবছৰমান হৈছে, তথাপিতো ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ এই ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ বাবে মই তেখেতক দিলো অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ কৰিলে আমি আজি এই বিশেষ 90তম ত্ৰিমূৰ্তি শিৱ জয়ন্তী উপলক্ষে আমি মুখ্য অতিথিৰ লগে লগে গেষ্ট অফ অনাৰ্ছ বহুতো সন্মানীয় অতিথিকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকক মই
আমাৰ ব্ৰহ্মকুমাৰী বাইদেউসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোকে যিসকলক আমি সন্মানীয় অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক ফুলাম গামোচাৰে অভ্যৰ্থনা জনাই যেন, আদৰণি জনাই যেন মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ গৈ এই মাতাসকল, আমাৰ ব্ৰহ্মকুমাৰী বাইদেউসকল সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকক যেন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছে। মই প্ৰত্যেকৰে নামবোৰ নলওঁ বাৰু, তো তথাপিতো আপোনালোকে নিজৰ স্থানতে থিয় হৈ আপোনালোকে সেই আদৰণি গ্ৰহণ কৰে যেন। আৰু যিসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে তেওঁলোকে অকণমান আগবঢ়াই দি তেওঁলোকে পৰিচয় কৰাই দি এই আদৰণি অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিসকলে আমাৰ মই এজনৰ নাম নলওঁ, নাম বেয়া নাপাব যেন। আপোনালোকে গামোচা লৈ আগবাঢ়ি যাওক, তেওঁৰ পিছে পিছে যাওক। শব্দটোৰ এটা বিশেষ আধ্যাত্মিক অৰ্থ। এই ৯০তম শিশু জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ মুখ্য বক্তা যি কিনোট স্পীচ আমাৰ আজি অনুষ্ঠান দাঙি ধৰিব, আমাৰ পৰম আদৰণীয় বিকে বিনীতা বাইদেউ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আদৰণীয় বিনীতা বাইদেউ আজিৰ পৰা প্ৰায় ৩৭ বছৰৰ আগতে অসমলৈ আহিছিল আৰু সেই এবাৰে অহা আৰু অসমত থাকি গ'ল। তেখেতে অসমৰ বায়ু, পানী, ভাষা সকলো শিকি লৈ আৰু গ্ৰহণ কৰি লৈ এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ দৰে হৈ পৰিল। আমাৰ লগতে থাকে, ডিব্ৰুগড়তে থাকে। তো আমাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে থাকি গ'ল। আপোনালোকে জানে যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰখনত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ সৌভাগ্য লাগে আৰু এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰখনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেনেকুৱা এগৰাকী মহান ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এই মহানবোৰৰ মুখেৰে এতিয়া আমি শুনিম। भावना है कि भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो। कभी न कभी भगवान कोई न कोई रूप में हमें, जो बहुत दिल से मुझे वर्षों से याद करते आए हैं, उनको ही मैं मिलूंगा। गीता में कहा है कि कोटों में कोई मुझे पहचानेगा। जो सच्चा भगत होगा, सचमुच में जिनको भगवान की खोज होगी, उन्हीं को भगवान मिलेंगे। क्योंकि जो भगवान का वायदा है कि मैं आऊंगा जरूर, वो हमारा बाप है, बच्चों से मिलने जरूर आएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बाप बच्चों के मिलने बिगर रह जाए या कभी ना आए, ये नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात हम ये देखेंगे कि शिव को बाबा कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत देवी देवताएं हैं, धर्म पिताएं हैं, महापुरुष हैं, देवी सब है ना, लेकिन हम बाबा सिर्फ शिव को कहते हैं। तो अर्थात वो शिव बाबा मेरी आत्मा का पिता है। हमारे दो फादर हैं, एक शरीर को जन्म देने वाले लौकिक फादर और दूसरे हमारे आत्मा के पिता शिव बाबा। अब शिव बाबा बाप है हमारे और वो रहते परम धाम में हैं, परंतु हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिव और रात्रि, कृष्ण का जन्म रात्रि में होता है। हम कभी कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं, लेकिन शिवरात्रि कहते हैं जब भी हम दिन में मनाते हैं। तो रात्रि का मतलब ये कोई
दिन रात की बात नहीं है। रात्रि वो है जब हम सब अति अंधकार में चले जाते हैं, जब गुरु विष्ठा खाती है, कन्या अपने मुखबर मांगती है, केसों का श्रृंगार रह जाता है, मानवता शून्य विज्ञान होता है, प्रेम रहित तो प्रभुत्व होता है, सदाचार विहीन व्यापार होता है, धर्म के नाम पर हिंसा होती है। और तब कलयुग के बिल्कुल अंत में जब विनाश की सारी तैयारी हो चुकी होती है, और हम भारतवासी भी देख रहे थे कल कि कैसे हम युद्ध की तैयारी पहले से कर रहे हैं, देखा ना सभी ने कल। तो ये सारी बातें हमें ये सिखा रही हैं कि महायुद्ध होगा, महाभारत की लड़ाई लगेगी, परमाणु युद्ध होगा। लेकिन हम क्या करेंगे उस समय? दो ही ऑप्शन है, या तो हम रोएंगे चिल्लाएंगे या उस परिस्थिति का सामना करेंगे। तो शिव बाबा हमको ये सिखाते हैं कि आप अभी से ही, समय आने के पहले ही आप अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि आने वाली कोई भी परिस्थिति का सामना हम सहज कर सकें। इसलिए परमात्मा कलयुग के अंत में आकर हम सबको अपना परिचय देता है कि आप सभी मेरे बच्चे हो। भगत बन के आपने बहुत समय याद किया, अब आप बच्चे बनकर सिर्फ मुझे याद करो तो मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए रात्रि का मतलब है अंधकार। दूसरा आपने देखा है कि हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर जी देवताय नमः। और शंकर जी का एक रूप दिखाया है, आकारी रूप, लेकिन शिव जी ज्योति स्वरूप है। आप सभी देख रहे हैं शिवलिंग, बीच में एक बिंदु है। वो जो बिंदु है ना, वही हमारा पिता है, परमात्मा हमारी आत्मा का पिता है, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं और जिनको आंख खुलते ही हम सवेरे याद करते हैं। जैसे लौकिक फादर को याद करते हैं, वैसे शिव बाबा को याद करते हैं। तो उनको याद करने से जो बुराई है, क्योंकि आज हम सभी क्या करते हैं, अग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, हम बेलपत्रे चढ़ाते हैं, है ना। चलो बेलपत्रे चढ़ाया अच्छी बात है, लेकिन धतूरा क्यों चढ़ाया? हम क्यों वो जो नशे की चीज होती है ना, भांग, वो हम क्यों चढ़ाते हैं? तो ये सब चढ़ाने का मतलब है कि अगर नशे वाली कोई भी बुराई मेरे अंदर है तो शिव बाबा कहते बच्चे अब छोड़ दो इसको, क्योंकि सब नशे में है नुकसान, सिर्फ एक नारायणी नशा। भगवान कहता है कि आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको नर से नारायण बनाने आया, अब वो नशा चढ़ाओ। मैं नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूं, अब वो नशा चढ़ाओ और अपने परिवार को, समाज को, सबको सत्युग अर्थात स्वर्ग में ले जाने के लिए, सुख शांति में रहने के लिए राजयोग सीखो। ये शिव पिता हमसे कह रहा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो हमारा सनातन धर्म है और जिसकी नींव है, वो यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ सबसे पहले सिखाया जाता है कि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन नहीं, प्रसाद है। शुद्ध भोजन का महत्व हमारे अंदर, हम हमेशा भगवान को भोग चढ़ा के तब हम खाना खाते हैं। ये हमारी पद्धति है, संस्कृति है। दूसरा, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ये महत्व है हमारे भारत के अंदर। तीसरा, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो कोई 10 बजे तक, 8 बजे तक सोते नहीं रहते थे, वो ब्रह्म मुहूर्त का। हम भी सवेरे परमात्मा को 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उनको याद करते हैं। फिर हमारे यहाँ योग का महत्व है ना, कि योग करो तो रोग भगाओ दूर की। अब हमने क्या किया, योग के नाम पर हम
शारीरिक एक्सरसाइज करने लगेगा तो शरीर की बीमारियों से थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि योग माना आत्मा का परमात्मा के साथ एक मीठा संबंध, कनेक्शन। जैसे एक बैटरी का पावर के साथ कनेक्शन होता है तो उसमें करंट आता है, ऐसे मैं आत्मा बैटरी और मेरा पिता परमात्मा लाइट हाउस। उसको हम मन से याद करते हैं और जब मन से याद करते हैं तो बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। तब हम सच्ची शिवरात्रि मनाते हैं। परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं की रचना की। ब्रह्मा को आपने देखा होगा, उनके माता पिता नहीं दिखाते हैं, ना शिव जी के माता पिता ना ब्रह्मा जी के माता पिता, तो जरूर कोई बात होगी। तो ब्रह्मा जी जो है वो उनका कर्तव्यवाचक नाम है। दादा लेखराज जो बहुत भक्ति करते थे, परिवार धंधा थोड़ी सब था, परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश किया और ये सारी बातें हमें ये बताई और सिखाई और कहा कि सब कुछ करते हुए आप मुझे याद करो, और फिर उनके द्वारा सारी बात बताई। तो ये उनका कर्तव्यवाचक नाम है। बाकी ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, उनके जीवन को हम फॉलो करते हैं। ब्रह्मा देवता है ब्रह्मा कहा गया है। उसके बाद जो शंकर जी को दिखाते हैं उनका भी आकारी स्वरूप है, अर्थात तो वो भी शिव जी को ही याद कर रहे हैं, क्योंकि शिव को कहते हैं देवों का देव महादेव, आदि अनंत, ये शिव के लिए कहा गया है। तो वो शिव पिता परमात्मा जो हमारे पिता हैं वो सब कुछ इजी सहज राजयोग सिखाकर और बड़े शांति से ना, ब्रह्मा कुमारी के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं कि शांति से हम बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। कोई हम शोर नहीं करते, कुछ नहीं करते। दूसरी बात, लोग हमें पूछते हैं कि आपका ये सब कुछ कैसे चलता है। कभी हमने नहीं देखा कि आप कहीं से डोनेशन लेते हो, कहीं से कुछ लेते हो। मैं नहीं समझती सभा में कोई ये कह सकता है कि ब्रह्मा कुमारी हमारे पास डोनेशन लेने के लिए आए थे, कोई कह नहीं सकता। हमारा यह विश्वास है कि हम अपने ही तन मन धन से, जो भी हमारे बीच के भाई बहन यहाँ आते हैं वो अपनी स्व इच्छा से ही सहयोग देते हैं और ये इतना बड़ा कार्य चलता है क्योंकि खुशी से दिया हुआ समृद्धि लाता है। तीसरी बात है कि आप इतना बड़ा ये भवन देख रहे हैं, इतनी सब चीजें देख रहे हैं, यहाँ पर किसी का भी नाम लिखा हुआ नहीं है कहीं नाम देखा किसी ने? जमीन देने वाले का भी नाम नहीं, मिलके जिसने बनाया उसका भी नाम नहीं, और चीजें इतनी है उस पर भी किसी का नाम नहीं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गुप्त दान का महत्व है। कहते गुप्त दान महापुण्य। तो हम ब्रह्मा कुमारी जिसमें विश्वास रखते हैं कि जो अपनी स्व इच्छा से यहाँ पर गुप्त में सहयोग देते हैं, वो जाने या मैं जानूं या भगवान जाने बस। और ऐसे करके हमारे गुप्त दान के महत्व को सामने रखते हुए हम सब कुछ अपना कार्य बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से करते हैं। फिर हमारे यहाँ बताया जाता है कि आंख खुलते ही आप भगवान को याद करो, मुसीबत के समय नहीं, आंख खोलो शिव परमात्मा की याद। सवेरे सवेरे बैटरी को चार्ज हम कर लेंगे तो सारा दिन क्या होगा, हमारी मन रूपी बैटरी चार्ज रहेगी और हम खुशी खुशी सारा दिन चलेंगे ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है, 1-1 घंटे की क्लास चलती है, फ्री कोर्स दिया जाता है। हमारा ऐसा विश्वास है और भगवान ने एक सूक्ष्म बात, एक सीक्रेट बताया है मुझे, जो मैं आपको बता रही हूँ कि परमात्मा ने कहा है कि जो भी मेरे कार्य में सहयोग देगा, अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का, तो मेरी ये जवाबदारी हो जाती है कि उसको सतयुग में ले जाए।
जाना, वो सत्युग में जरूर जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ सहयोग दिया है। तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब तक हम किसी की सेवा नहीं कर लेंगे, उनको 7 दिन का कोर्स नहीं करा देंगे, उनको परमात्मा का परिचय नहीं दे देंगे, तब तक हम किसी का धन स्वीकार करते नहीं हैं, क्योंकि भगवान को उसका रिटर्न देना है। तो पहले उनको बच्चा बनना पड़ेगा। यहाँ की कुछ बातें 1% ही सही उन्हें माननी पड़ेगी ना, तो भगवान उनका रिटर्न उनको देगा, तो उनको सत्य में जाना होगा। तो इसीलिए कुछ सीक्रेट यहाँ बताए जाते हैं जिनको हम जानते हैं, और उसी हिसाब से ये हमारा सारा कार्य बहुत सहज रीति चल रहा है, और आगे भी इसी प्रकार से सहज चलता रहेगा। यहाँ सिखाते हैं कि हम कोई अगर नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें जो हमारा खर्चा होता है, मान लो अगर किसी को ड्रिंक करने की आदत है या कुछ ऐसा खराब चीज खाने की आदत है, तो बहुत खर्चा होता है उसमें। तो जब वो ये राजयोग सीखने लग जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो वो जो धन फालतू जाता था, उस धन से वो यहाँ सहयोग देते हैं, और उससे ये सारे कार्य चलते हैं। और एक बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि जाति किसकी क्या है, धर्म किसका क्या है, कौन कहाँ से आता है, सब एक परिवार है। जैसे एक परिवार में एक साहूकार भी है, एक गरीब भी है, एक साधारण भी है। हमारी जब सवेरे क्लास होती है तो ऐसा नहीं है साहूकार है वो आगे बैठे, या पढ़ा लिखा है वो आगे बैठे, वो पीछे बैठे, ऐसा कुछ नहीं। एक परिवार है, ब्रह्मा कुमारी से एक परिवार है, जो सारे विश्व के अंदर एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक राज्य लक्ष्मी नारायण का राज्य, एक ही भाषा सारे विश्व में हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा, और एक ही परमात्मा की मत, सब कुछ वन 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 वन, सारे विश्व के अंदर एक मत भगवान कर रहा है, जिसको कहते हैं श्रीमत, श्रीमत भगवद गीता। भगवान की ऐसी श्रेष्ठ मत जिससे सारी दुनिया परिवर्तन हो जाती है, और एक दिन इस धरा पर सत्युग आ जाता है। तो एक मत, एक धर्म, एक राज, एक कुल, एक भाषा की परमात्मा स्थापना कर रहे हैं। तो चलिए हम सभी इसमें सहयोगी बनते हैं, और जो बचा हुआ परमात्मा का कार्य है उसको हम सब मिलकर पूर्ण करते हैं, अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। एरिको एक ना लगे ना, भगवान को से सब कुछ करते हुए माँ एकम याद करो। निजर गृहस्थी संभाली बोलेगी वो, बाल बच्चों संभाली बोलेगी वो, धंधा धूरी करे बोलेगी वो, सब करे बोलेगी वो, किंतु सब कोरा लोगे लोगे निजरो ध्यान रखी बोलेगी वो कि असत्य आमी हूँ तो मैं एक बिंदु आत्मा ज्योति, ये ज्योति जेते आमी निजोके भावू न तेते এটা বেলেগ পাওয়ার আহে, আৰু এনেকা লাগে যেনেকা একো বোঝ নাই, মই একদম লাইট, মই একদম ফ্ৰী, এনেকা অনুভৱ হয়। তো সেই অনুভৱ যি মই কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু কিছুমান ভয় কৰে কি ব্ৰহ্মা কুমাৰী গ'লে বগা কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, কিন্তু এনেকা নহয়। বগা কাপোৰ মোৰ কাৰণে নেচেচেৰী, মোৰ কাৰণে, কেলে মই ইয়াত এজ এ টিচাৰ মোৰ বহুত ৰেছপনচিবিলিটি ইয়াত আছে। মই যি কাপোৰ পিন্ধি ইয়াত কাম কৰিব নোৱাৰিম। যেনেকা এটা নাৰ্ছ কি কৰে, এটা ইউনিফৰ্ম থাকে, ঠিক তেনেকা আমি সকলো সিস্টাৰ, আমাৰ কাৰণে কম্পালচৰি নাই, কিন্তু যোনে আমাৰ মেম্বাৰ আহে ইয়াত ৰাজযোগ শিকিবলৈ আহে, মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোক যি কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে, একো তেনেকা বাধা নাই ইয়াত। हाँ, रातिपुৱা যেতিয়া ক্লাছ হয় তেতিয়া এটা বগা পিন্ধিলে এনেও ভাল লাগে ন, है ना। तो ऐसे भी एक शांति का प्रतीक है ना, तो वो अपनी चॉइस से पहन कर आती है, अलग बात है।
लेकिन परिवार वालों के लिए कोनो एटो बाधा नाय कि आपुनी यात आहिले बोगा कापुरे पिलिब লাগিব एको बाधा नाय अपनी बहुत सहज या इजी राजू गही गुआ हुए और अपनी सबे लाभ लोगों पारे। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि अपना लोग সকলো যোনে প্ৰথমবাৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে তেওঁলোক পিছতো আহিব আৰু ইয়াৰ মেডিটেশ্যন বিষয়ে যি ইয়াত বুজোৱা হয় সেইটো আপুনি ল'ব পাৰিব। আমাৰ ইয়াত 3টা জেগাত সেৱা চলি আছে, এটা ইয়াত আছে আৰু এটা আমাৰ ধানাচৰালি চেণ্টাৰ আছে আৰু এটা মেডিকেল ফালে আমি এটা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ जो हमारे ऊपर আছে 2টা रूम ताकि সৰুকে এতিয়া বেছি সময় হোৱা নাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো 3টা জেগাত আপুনি যতে সুবিধা হয় আপোনালোক এইটো আহিব পাৰিব আৰু লাভ ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ আমাৰ এইটো হলটো সৰু হৈ যায়। আজিও আপুনি দেখিছে বহিবলৈ জেগা পোৱা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ এটা ওপৰত হল বনাই আছোঁ আমি कंप्लीट टीना दी आमी हॉल टू बनाया आसु সোনকালে হৈ যাব লাগে তেতিয়া আমি তাৰ উদ্ঘাটন কৰিম আৰু আপোনালোক সকলো আহিব। এইটো আপোনালোক সকলো ঘৰ কেলে আপুনি ইয়াত লিখা দেখিছে प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये जो घर है, ये जो संस्था है, सिर्फ भगवान के नाम पर है। ये किसी देवी के नाम पर, किसी इंसान के नाम पर, किसी संत के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी के नाम पर नहीं है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये ईश्वर के नाम पर है। तो ईश्वर के नाम पर होने के लिए आप सबका ये घर है, अपना निजर घर। जेतिया मन गले अपनी याद আহিব बाबा घर হয়তো আৰু বাবা ঘৰৰ সকলো অধিকাৰ। তো এই অধিকাৰ লৈ আপোনালোক ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াৰ লাভ ল'ব আৰু সেইটো অনুভৱ আপুনি যেতিয়া বেলেগে শুনাব তেতিয়া কি জানে তেওঁলোক এইটো লাভ ল'ব পাৰিব। ইয়াতে বাচ্চা কাৰণেও ক্লাছ হয়। এতিয়া ৰিচেণ্ট মই অনুভৱ আপোনাক এটা শুনাই শেষ কৰিম। এতিয়া আমাৰ हायर सेकेंडरी और मैट्रिक क्लास एग्जाम आरम्भ হৈছে। तो 4টা स्टूडेंट তেওঁলোক ক'লে कि मैं एग्जाम नदिওঁ, मोर तैयारी हुआ ना। और आजिकली अपनी जाने কি থাকে ন ষ্টুডেণ্টৰ মন চন বেয়া একদম মন নালাগে, কিছু মানে কৈছে মই সুইচাইড কৰি দিম, ঘৰটো এৰি দিম, এনেকা কৰিম তেনেকা কৰিম। তাৰপিছত মই গম পালোঁ এনেকা মাতিলোঁ আৰু বহি মেলি বুজালোঁ, মেডিটেশ্যন কৰালোঁ। আপুনি বিশ্বাস নকৰিব এই 4টা ষ্টুডেণ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এক্সাম দি আছে। আৰু কৈছে দিদি মই বহুত ভাগ্যশালী যে আপোনাক লগ পালোঁ, নহ'লে মোৰতো চাল গ'ল। তো এনেকুৱা এইটো ৰাজযোগ আছে, এইটো আমাৰ ভয় নাইকিয়া কৰি দিয়ে, আমাৰ বেমাৰী খতম কৰি দিয়ে। আচল বহুত কম ফিল হয় না আমাৰ বহুত তালাক, এতিয়া তালাক হ'বই হ'ব, এনেকুৱা কেছ বহুত আছিলে ন। কিন্তু যেতিয়া কোনোবা ক'লে কেতিয়াবাতো এডভোকেট ইয়াত পঠাই দিয়ে, জজ ইয়াত পঠাই দিয়ে, যাওক আগতে ব্ৰহ্মা কুমাৰী গৈ আহক, পিছত আপোনালোক ডাইভৰ্চ ল'ব। তো যেতিয়া মোৰ ওচৰতে আহে মই কওঁ 1 সপ্তাহ পিছত আপুনি ডাইভৰ্চ লৈ ল'ব, 1 সপ্তাহ মোক দিয়ক, পাহৰি যায়। তো এনেকুৱা परमात्मा और हे काम कहाँ से? ये बाबा का काम है, भगवान का काम है। वो परमात्मा ने ही मुझे सिखाया है, मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मुझे खुशी होती है कि भगवान के बच्चों का जीवन बच जाए, उनकी दुख दूर हो जाए
उनको शांति मिल जाए, यही कार्य हम निस्वार्थ भाव से सारे विश्व में हम ब्रह्मा कुमारी बहने कर रही हैं। आप भी आइए, हमारा सहयोग दीजिए, जैसे इस कार्य को और भी हम आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ आए और ऐसे ही हम सभी मिलजुल कर सारा कार्य करते रहेंगे। ओम शांति शांति। प्रथमे आमार मंचत उपविष्ट सम्मानीय अतिथिসকলে दीप प्रज्वलन करा अवलोकन करिम। तार पिछते आमार तलत आमी आमार कर्मकर्ताসকলক कैंडल आगुवाई লৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমি নিমন্ত্ৰণ দিয়া যিসকল গেষ্ট অফ অনাৰ সম্মানীয় গেষ্ট অফ অনাৰ তেওঁলোককো আমি ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট অতিথিসকলৰ ঠিক পিছতে দীপ প্ৰজ্বলনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আপোনালোকে যিসকলক গেষ্ট অফ অনাৰ ৰূপে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আপোনালোকে নিজে নিজে নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি আগবাঢ়ি আহিব আৰু দীপ প্ৰজ্বলন কৰিবহি। दीपक जलाते हैं। এতিয়া লগে লগে আমি গেষ্ট অফ অনাৰ যিসকল সন্মানীয় ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু দীপ প্ৰজ্বলন কৰিব লাগে। আমাৰ তলত ৰাখি থোৱা দীপ কেণ্ডেল ষ্টেণ্ডত আহি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ লাগে। प्रज्वलन होवार लगे लगे आमार आत्मार दीपक उज्जवली उठक। Let the darkness of ignorance be dispelled. ইমান আজি মঙ্গলময় দিন, আজি আনন্দ উৎসৱৰ দিন, আজি শুভ দিন, যি দিনত আমি আমাৰ নিজৰ লগতে পৰমাত্মাৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা এক জন্মদিনত এয়া আমাৰ শিৱ ধ্বজাৰোহণ, যে শিৱ বাবাৰ যি ঝণ্ডা 32টা গুণৰে অধিকাৰী দেখুওৱা হৈছে চিম্বলিক। তো সেই প্ৰথম 16টা গুণৰে অধিকাৰী, সেই 16টা গুণৰ প্ৰতীক দেখুওৱা হৈছে শিৱ বাবাৰ ঝণ্ডাত। এয়া wave your flags. এয়া শিৱ বাবাৰ ঝণ্ডা গোটেই বিশ্বতে উৰিবলৈ ধৰিছে আৰু গোটেই বিশ্বই শিৱ বাবাৰ এই মেছেজ পাইছে। धरती पर शिव बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया, आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। एक दिन आएगा जब धरती आकाश सब पे गूंजेगा, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया, शिव बाबा ही गोल, शिव बाबा ही गोल। আৰু আমাক মুক্তি, জীৱন মুক্তি দান কৰিবলৈ শিৱ বাবাই ধৰতীত আহি গ'ল।
शिव बाबा ये धरती आई हो। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। आज हम शिव बाबा के जन्मदिन का केक काटने जा रहे हैं। ऐसे तो सुन के कुछ थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन शिव हमारा बालक भी है, बच्चा भी है, बाप भी है, माँ भी है, सब कुछ है। एक भगवान ही है जिसके साथ हमारे सारे संबंध है, और वो तो ज्योति बिंदु है। आप कुछ भी बना लीजिए, जिस भी संबंध से आप उनको याद करेंगे उसी संबंध से आपको वो मदद करने दौड़ा चलाएगा। तो दिल में आता है क्यों ना हम उनके जन्मदिन पर केक काटे और खुशियाँ मनाएं। तो आप सब मेरे साथ होंगे ही। आप सब अनुभव करें, चाकू आपके हाथ में है और हम सब मिलकर ये केक काट रहे हैं। ठीक है? ओम शांति। आज अवतरे ज्योति निराली, खुशियों से सजी है हर डाली। शिव जयंती आई है बाबा, सारी सृष्टि हुई मतवाली। हैप्पी बर्थडे शिव बाबा, हैप्पी बर्थडे। ये ज्योति का पिता हम सबका हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शिव बाबा, हैप्पी बर्थडे। ये ज्योति का पिता हम सबका हैप्पी बर्थडे। ना जन्म लिया ना रूप धरा, फिर भी जग में ठाट भरा। ज्ञान सूरज बनकर आए, अंधियारा सब दूर करा। नई मीठी खान सुनाई, सोई किस्मत फिर जगाई। संगम युग की पावन बेला। ओम शांति। मंच पर उपस्थित राजगोप योगिनी विनीता दीदी जी, विशिष्ट मुख्य अतिथि, मैं डीआईजी तो नहीं बोलूंगा, मेरे को तो आज लग रहा है गुरुजी बैठे हैं। आज सवेरे मैंने उनका 14 मिनट का जो भाषण सुना, इसके बाद मुझको शक हो रहा है कि ये सीआरपी के हैं या छद्मवेश में बाबा हैं। पता ही नहीं चलता, आदमियों का पता नहीं। कितनी गुणता से 10-15 मिनट में सनातन धर्म की व्याख्या कर देना, ये सहज आदमी का काम नहीं है। मैं आज मेरे लिए ये इतना ऐतिहासिक दिन है। मैं पिछले 50 साल से शिवरात्रि कर रहा हूँ। मैं लास्ट 49 বছৰৰ পৰা শিৱৰাত্ৰি ব্ৰত কৰি আছো। মই আজি দিনটো ব্ৰতটো যিটো আছে, শিৱৰাত্ৰিটো আছে নহয়, এইটো এনেকুৱা এটা শিৱৰাত্ৰি হৈছে যে মই মৰা থাকোঁতে মই মনত থাকিব। মই ইমান দান কেক কাটি কিনি ইমান দানটো মোৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডেও কাটি কিনি দান কৰা নাই দেই। আজি শিৱজীক মোক কিবা দিব লাগিব, শিৱজী তোমাৰ কাৰণে ইমান ডান্স কৰি দিলোঁ। আপোনালোক সব সাক্ষী আছে, ইয়াত যিমান মানুহ আছে ন, সব সাক্ষী আছে মোৰ ডান্স কৰাটো। ঠিক আছে নহয়? তো হে শিৱজী মোক দয়া কৰিব দেই। তাৰপিছত বাদ দিয়ক, সঁচাকৈ আজি আহি এনেকুৱা পবিত্ৰ পবিত্ৰ ভাৱ লাগিছে। আজি শিৱৰাত্ৰি আছে, এনেই পবিত্ৰ দিন, তথাপি ইয়াত আহি এটা ওৰা মানে সোমালে এটা মনত লাগে, যেনেকুৱা কিবা কিবা হৈ আছে মানে
কিমান পবিত্ৰ পবিত্ৰ হৈ আছে হয় নহয় আপুনি সঁচাকৈ আজি ৰাতি আপোনালোকৰ টোপনিটো যিটো আহিব নহয় মই কৈছোঁ যিজনে মেডিচিন লৈছে না দৰকাৰে নাই আজি নল'ব মেডিচিন ইমান ধুনীয়াকৈ টোপনি আহিব নহ'ব এইটো আজি এওঁ যিটো ব্ৰহ্মকুমাৰী আছে মই নিজকে ভাবিছোঁ কি মই ইমান দিন কিয় বাদ দিলোঁ মই চব জেগাত গৈ আছোঁ 7টা কলেজত চাই আছোঁ প্ৰত্যেক কলেজত পৰিচালনা সমিতিত থাকোঁ লেকচাৰ দিওঁ ইউনিভাৰ্চিটি গৈ থাকোঁ এই কেনেবাই এই ব্ৰহ্মকুমাৰীটো মোৰ হাতৰ পৰা পাৰ হৈ গ'ল মই বুজিব পৰা নাই হ'ল মোৰ বয়স হৈছেতো 100 বছৰ বয়স হৈছে যোৱা টাইম হৈছে ক'ব পাৰে ভগৱানে কৈছে কি যা এতিয়া অলপ মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন কৰি লোৱা তেতিয়াহে তুমি মোৰ লগতে আহি ভালকৈ থাকিব পাৰিব এইকাৰণে এটি অল প্লানিং ভগৱানৰ চবৰ এটা প্লানিং থাকে আমি যেতিয়া ইনকাম টেক্সৰ ৰিটো কৰোঁ CA কৰোঁ তেতিয়া মানে এটা প্লানিং থাকে BCPLৰ নাম গৈ আছে এওঁবিলাক কৰি কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰে আগত পৰা কিমান প্লানিং কৰি সিহঁতি কামবিলাক কৰে এনেকুৱা ভগৱানৰ এটা প্লানিং আছে মই আহিছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ ফিলচফি অফ গিভিং মানে আপুনি ভাবি ৰাখিব কি আপোনাৰ হাতত যিমান আছে মোৰ হাতত যিমান আছে বা আপোনাৰ হাতত যিমান আছে তাৰপৰা কিবা কাকো দি কিনি যিটো সুখ পায় নহয় এই সুখটো আপুনি বজাৰত বস্তু কিনি নাপাব এই সুখটো যিটো আছে এই সুখৰ কাৰণে আপুনি ভাবিব মোৰ 2টা পুত্ৰ আছে এটা UKত আছে এটা ডক্টৰ আছে ইহঁতি পইচা পঠায় মই মানে এতিয়া ডিব্ৰু কলেজত এটা প্ৰশাসনিক ভৱন 2 কোটি টকা বনালোঁ ঠিক আছে নহয় এতিয়া হস্পিটেলত এটা বিল্ডিং বনাই আছোঁ তাত MRI নিচিনা হ'ব বাট দি কিনি মই সঁচাকৈ মোক কোনো মেডিচিন ল'ব নালাগে মই ৰাতি এতিয়া এই বয়সত মই দিনভৰ কাম কৰি থাকোঁ কিয় দি কিনি যিটো সুখ পাওঁ নহয় এই সুখটো মোক মানে আগবঢ়াই থাকে মই বেছি কথা নকওঁ আপোনালোকক আমাৰ মুখ্য অতিথি আমি এইবাৰ আকৌ শুনিম মই এইকাৰণে বেছি কথা নকওঁ কি মই মানে ত্ৰিপাঠীজীৰ ৱেইট কৰি আছোঁ ত্ৰিপাঠীজীৰ পৰা আৰু আকৌ আজি কিমান লৈ ল'ব পাৰোঁ মই লৈ ল'ব বিচাৰি আছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকক খুব ভালে থাকক খুব ভাল থাকক খুব ভাল শুভজীৱৰাতি হ'ব ধন্যবাদ গড ব্লেছ ইউ অল ত্ৰিমূৰ্তি শিৱ জয়ন্তী উপলক্ষে সকলোলৈকে মই ওলগ জনাইছোঁ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান চৰ্চা কৰাৰ লগে লগে ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনো কৰা হয় এই ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন আমি মন আৰু বুদ্ধিৰে পৰমাত্মাৰ লগত কানেকশ্যন কৰোঁ আৰু আমি সুমনৰ গৰাকী হ'বৰ কাৰণে সুবুদ্ধিৰ গৰাকী হ'বৰ কাৰণে আৰু নিজৰ বদ অভ্যাস বেয়া সংস্কাৰবিলাকক শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে এই ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন কৰোঁ মেডিটেশ্যনত আমি পৰম শক্তি পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ লগত কানেকশ্যন কৰোঁ মন বুদ্ধিৰে গতিকে আমি যে সেই শক্তিটোৰ বিষয়েও আমি স্পষ্টকৈ জানিব লাগিব কানেকশ্যন কৰাৰ আগে আগে যে সেই পৰম শক্তিটোনো কোন শক্তি ক'ত থাকে সেই বিষয়ে মই সেই বিষয়ে অলপ কৈ দিছোঁ মই যেতিয়া মেডিটেশ্যন কৰিম গতিকে নিজৰ বিষয়েও আমি জানি ল'ব লাগিব মই আচলতে কোন হয় এই শৰীৰটোৱেতো মই নহয় শৰীৰটো চলাই থকা যিটো শক্তি যিটো আমি চকুৰে নেদেখোঁ সেই শক্তিটোৱেহে মই সেইকাৰণে শৰীৰটো মোৰ বুলি কওঁ মই শৰীৰ বুলি নকওঁ মোৰ শৰীৰ তাৰমানে মই কোন মই আচলতে সেই শক্তিটো যিটো শক্তিক নেদেখোঁ সেই শক্তিটো এটা জ্যোতি বিন্দু হয়
কপালৰ মাজতে আছে, য'ত আমি তিলক লগাওঁ, ফুট লগাওঁ, তাৰ ভিতৰতে সেই শক্তিটো আছে। সেই শক্তিটোক আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে বুদ্ধিৰ নেত্ৰৰ দ্বাৰা দেখিব লাগিব, কিয়নো স্থূল নেত্ৰৰে দেখা নাযায়। বুদ্ধিৰ নেত্ৰৰে দেখি পেলাই সেই শক্তিটো, আৰু সেই শক্তিটোকে আধ্যাত্মিক ভাষাত আত্মা বুলি কয়। আমি সাধাৰণতে কওঁ প্ৰাণ শক্তি বা প্ৰাণ বায়ু। বায়ু যেনেকৈ দেখা নাযায়, প্ৰাণ শক্তিটোকো দেখা নাযায়। গতিকে মই এতিয়া আত্মাই যাৰ লগত কানেকশ্যন কৰিম, সেই পৰম শক্তিটো হৈছে পৰম পিতা পৰমাত্মা, যাক আমি শিৱ বাবা বুলি কওঁ। আৰু সেই শিৱ পৰম পিতা পৰমাত্মা আছে ব্ৰহ্মলোকত, আকাশ তত্ত্বৰো সিপাৰে। আমি আত্মা যেনেকৈ জ্যোতি বিন্দু হয়, ঠিক তেনেকৈ সেই পৰম শক্তিটোৱে হৈছে জ্যোতি বিন্দু, নিৰাকাৰ জ্যোতি বিন্দু। গতিকে আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব, অনুভৱ কৰিব লাগিব মন বুদ্ধিৰে সেই পৰম শক্তি। গতিকে মই আজি অলপ আপোনালোকক তেনেকুৱা অভ্যাস কৰাই দিম, আপোনালোকে অকণমান সময় অনুভৱ কৰিব। আৰু এই ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি সুমনৰ গৰাকী হ'ব পাৰোঁ, বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়, সুবুদ্ধিৰ হ'ব পাৰোঁ, সংস্কাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বদ অভ্যাসবিলাককো পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আমি শক্তি পাওঁ, মন বুদ্ধিত বহুত বল ভৰি যায়। গতিকে আপোনালোকে পূৰা চিধা হৈ বহক। আৰু কপালৰ মাজতে য'ত আমি তিলক লগাওঁ বা ফুট লগাওঁ, তাতে মন বুদ্ধি একাগ্ৰ কৰক। মন বুদ্ধি একাগ্ৰ কৰক, চব চিন্তনৰ পৰা মুক্ত কৰি লওক নিজকে। মই আচলতে কোন হয়? মই এটা জ্যোতি বিন্দু আত্মা। অনুভৱ কৰক আত্মাক। কপালৰ মাজতে আছে, দুই ভ্ৰুকুটিৰ মাজত য'ত আমি তিলক লগাওঁ, তাৰ পৰা ভিতৰলৈ চাওক, বুদ্ধিৰ দ্বাৰা দেখক এটা উজ্জ্বল লাইট জ্বলি আছে কপালৰ ভিতৰতে। উজ্জ্বল লাইট, তৰাৰ নিচিনা লাইট, তাৰ পৰা বহুত কিৰণ ওলাই আছে। গোটেই মূৰৰ অংশত বিয়পি পৰিছে লাইট, আৰু মোৰ গোটেই শৰীৰটোলৈ আত্মাৰ পৰা লাইট বিয়পি আছে। অনুভৱ কৰক, মই শক্তি স্বৰূপ আত্মা, মই শান্ত স্বৰূপ আত্মা। উপলব্ধি কৰক, মোৰ আচল ঘৰ ব্ৰহ্মলোকত। এই সৃষ্টি মঞ্চত মই শৰীৰটোৰ দ্বাৰা পাৰ্ট কৰিছোঁ। মোৰ আচল পিতা পৰম পিতা শিৱ বাবা আছে ব্ৰহ্মলোকত, আকাশ তত্ত্বৰো সিপাৰে। নিজকে দেখক কপালৰ মাজতে মই এটা উজ্জ্বল লাইট, এটা উজ্জ্বল লাইট হৈ ওপৰলৈ যাওঁ। কপালৰ মাজৰ পৰা ওলাই এটা বিন্দু হৈ ওপৰলৈ যাওঁ, ওপৰলৈ
চন্দ্ৰ সূৰ্য তৰা গণৰ সিপাৰলৈ, তৰা গণৰ সিপাৰে য'ত মহাশূন্য, কোনো আৱাজ ধ্বনি নাই, মই তাতে উপস্থিত হৈছোঁ। তাতে উপস্থিত হৈছোঁ য'ত চাৰিওফালে ৰঙা পোহৰ, ব্ৰহ্ম মহাতত্ত্ব, বিশাল মহাশূন্যত মই জ্যোতি বিন্দু আত্মা, একদম শান্তিময় বাতাবৰণ। আৰু ওপৰলৈ যাওক, আৰু ওপৰলৈ, মহাশূন্যৰ একেবাৰে ওপৰত দেখক পৰম জ্যোতি, পৰম পিতা পৰমাত্মা। মই জ্যোতি বিন্দু আত্মা, সন্মুখত দেখক পৰম জ্যোতি, পৰম পিতা পৰমাত্মা। মন বুদ্ধি একাগ্ৰ কৰি দিয়ক পৰম জ্যোতিৰ লগত। তেওঁৱেই সৰ্বশক্তিবান, তেওঁৱেই শান্তিৰ সাগৰ, তেওঁৱেই জ্ঞানৰ সাগৰ। চৈতন্য পৰমাত্মা জ্যোতি, মন বুদ্ধি একাগ্ৰ কৰক, স্থিৰ কৰি দিয়ক। অনুভৱ কৰক পৰমাত্মাৰ পৰা শান্তিৰ লাইট মোৰ ওপৰত পৰি আছে, সৰ্বশক্তিৰ লাইট আত্মাত ভৰি গৈছে। মই আত্মা জ্যোতি বিন্দু, মোৰ সন্মুখতে পৰম জ্যোতি, পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ লাইট চাৰিওফালে বিয়পি আছে, উজ্জ্বল লাইট। মই আত্মাই বহুত শান্তিৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ। পৰমাত্মাৰ লাইট লৈ পুনৰ ঘূৰি আহক, এটা উজ্জ্বল লাইট হৈ, শান্তিৰ লাইট হৈ ঘূৰি আহক, ঘূৰি আহক। গোটেই বিশ্বৰ বায়ুমণ্ডলত শান্তিৰ লাইট বিলাই দিয়ক। আহি আহি এই স্থূল শৰীৰটোৰ কপালৰ মধ্যভাগত বিৰাজমান হৈ যাওক, আৰু গোটেই শৰীৰটোৰ কৰ্মেন্দ্ৰিয়ত শান্তিৰ লাইট, সৰ্বশক্তিৰ লাইট বিলাই দিয়ক। ওম শান্তি। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती शिव शंकर पार्वती रमणा की लगे सुंदर कर विराज सुंदर कर विराज गंगाधर
अभी और सुनना चाहते हैं आप लोग? चलिए, आपकी अनुमति है तो आज के इस पावन अवसर पर मंच पर हमारे बीच आसीन राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी विनीता दीदी जी, साथ ही हमारे साथ उपस्थित डिब्रूगढ़ शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और चाय बागान उद्यमी श्री ज्योति कनई जी, साथ ही हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबद्ध रहे धनीराम भाई जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालक बीके विधान भाई जी, हमारे साथ इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक भाईगण तथा मातृत्व एवं वात्सल्य से परिपूर्ण हमारी सभी बहनें, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उस समय आपको धूप में खड़ा किया, क्योंकि मैं एक साधारण मानव हूं। मुझे पता नहीं है कि परम पिता ने मेरे लिए आगे क्या सौभाग्य बचा के रखा है। मैं तो ये समझ रहा था कि वहीं बात करके और मेरी वाणी का वहीं विराम हो जाएगा, लेकिन इतने अच्छे एक सभागार में, इतने अच्छे वातावरण में फिर से हम आपके सामने कोई बात रख सकेंगे, इसका मुझे सौभाग्य पुनः मिलेगा, इसकी मुझे आशा नहीं थी। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको उतनी देर तक मैंने उस समय में खड़ा किया। अब जब दोबारा आपके साथ बात करने का मुझे ये सौभाग्य मिला है, तो मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूं जहां वहां पे खत्म किया गया, क्योंकि मैं एक वक्ता नहीं हूं। मुझे ज्योति भाई साहब की तरह बोलना नहीं आता। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी अच्छी बात, इतने सहज भाव में बोला कि पूरा हॉल उस समय में ऐसे पूरा एकदम ऐसे लग रहा था जैसे खिलखिला रहा हो। मुझे बोलना नहीं आता, ना ही मेरे पास गूढ़ विषय है कि मैं विनीता दीदी जी की तरह कुछ आपके सामने रख सकूं, मेरे पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि फौजी हूं, दो बात करूंगा और जो मन में आता है वो बात आपके सामने रखता हूं। यहां से रखता हूं, सीधा दिल की बात आपके सामने रखूंगा और उसमें किसी को किसी तरह का कोई अगर मान लिया हस्तक्षेप हो या उसके साथ कोई सहमत ना हो तो मुझे माफ कर देंगे। मेरा तो सिर्फ ये कहना था कि परम पिता या परम ब्रह्म, अगर हम अपने से जो भी बड़े हैं उनको मान लेते हैं तो हमारे जीवन का नैया उसमें पार हो जाता है। कोई संदेह नहीं है, कहीं से कोई शक नहीं है। हम सिर्फ अपने बड़ों का आदर करना सीख जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम अपने सभी कार्यों में, सभी उद्देश्यों में सफल हो जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। अब रह गई बात कि इन सभी चीजों के लिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर हम अपने गुरु को परम ब्रह्म मान लेते हैं तो उनकी बातों को अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो हमारी परमात्मा की प्राप्ति वहीं से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। गुरु के बारे में मैंने आपको बताया ही, गुरु हमारी
विनीता दीदी जी जैसी गुरु, जिनके बारे में अगर मैं कुछ भी कहूं, गुरु के बारे में अगर मैं उनका किसी तरह का महिमा का उनका बखान करूं, तो मुझे लगता है कि ये बातें सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। जितना सूरज का प्रकाश है उसमें मैं एक दिया और दिखा दूं, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं। वैसे ही गुरु की महिमा है, और हम ही नहीं, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि गुरु की महिमा का अगर हम बखान शुरू करें तो शायद ये दिन निकल जाए, रातें निकल जाए, फिर उनके गुरु की महिमा का बखान नहीं खत्म हो सकता है। मुझे इस बात पे कवि के वो दोहे याद आते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 7 समंद की मसी करो, मसी मतलब स्याही, स्याही जिससे लिखते हैं, इंक। 7 समंद की मसी करो, 7 समुद्र को अगर हम स्याही बनाते हैं, 7 समुद्र मतलब जितना जल है पृथ्वी पर सबको अगर हम स्याही बना दें, और लेखन सब बन राई, जितनी भी लकड़ियां हैं इस पृथ्वी पे अगर उनका हम कलम बना दें, सात समंद की मसी करो, लेखन सब बनराई, आ धरती सब कागज करो। अगर पूरी धरती को हम कागज के समान मान लें और उस कलम से, उस स्याही से लिखना शुरू कर दें, तो गुरु गुण लिखा न जाए। उतना में भी गुरु का गुण पूरा तरह से नहीं समा पाएगा, पूरी तरह से नहीं समा पाएगा। ये गुरु की महिमा है, यही बखान है, और इस चीज को अगर हम समझ लेते हैं, इनकी बातों को हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं, उस पर आचरण करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य है। गुरु का काम क्या है, गुरु अपने काम को किस तरह से करते हैं, इसके बारे में भी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। गुरु और हमारा रिलेशन क्या है? मैं गुरु की जब बात करता हूं तो मैं सबसे पहले अपनी माता जी को, आप मैंने जो भी हैं अपने यहाँ पे, सबकी, पूरे संसार की जो माताएं हैं वो हमारी प्रथम गुरु होती है, और फिर एक हमारे गुरु जो हमें बाकी चीजें सिखाते हैं। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है उसके बारे में जो कवि ने कहा है, जो मुझे अच्छा लगा, उस पंक्तियों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। गुरु कुम्हार, कुम्हार मतलब जो मिट्टी के घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कुंभ मतलब घड़ा। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार की तरह है, शिष्य जो है एक घड़े के समान है, जिसमें गुरु खोज खोज के उसकी बुराइयों को निकालता है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, आपने देखा होगा कुम्हार, जब कुम्हार मिट्टी के अपने बर्तन बनाता है तो उसमें से बिल्कुल छोटे छोटे महीन महीन कंकर या वो सब जो उसमें तिनके होते हैं उनको खोज खोज के निकालता है, ताकि उसका जो बर्तन बने वो बिल्कुल चिकना और सुंदर हो। उसका उद्देश्य वही होता है। तो उसी तरह से है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कि अंदर से, जिस तरह से अगर आपने देखा होगा कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर से सहारा देते रहता है, लेकिन बाहर वो जोर जोर से थपकियां मारता रहता है। इसलिए मारता है कि उसका घड़ा चिकना हो, और अंदर से सहारा दे के रखता है ताकि मजबूत भी रहे, और बाहर से उसको ठोक ठोक के मजबूत करे, लेकिन अंदर से वो टूटे नहीं। यही हम घड़ा हैं, हम शिष्य हैं, आप गुरु हैं। आपने हमारी सारी बुराइयों को खोज खोज करके निकालना है,
निकाल रही हैं और हम जो है वो एक चिकने घड़े की तरह तैयार हो रहे हैं। इस बात को, ये हमारा संबंध है गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु को के बारे में कहा गया है कि एकदम बिल्कुल नारियल का जैसे फल होता है ना, अंदर से एकदम पानी से भरा हुआ, देखने में अति सुंदर सफेद सा और खाने में भी उतना ही मीठा, लेकिन बाहर का जो आवरण है वो बहुत ठोस है। तो उस ठोस आवरण को पाने के लिए उस ठोस आवरण से आपको जाना पड़ेगा उस सुंदर से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये हमको जरूरी है कि हम उसमें सतत प्रयास में रहें और उस जो अमृत है उस अमृत के तक पहुंचे और उसका फिर पान करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी उस दिशा में इस तरह से प्रयासरत हैं। जितनी सादगी और जितने तन मन से आप लोग लगे हुए थे और यहाँ पे सारा कार्यक्रम जो है संपन्न हो रहा था। आज इस महापावन अवसर पे मैं आप सभी को, आपके सभी परिवारजनों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मंगल कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में, आपके परिवार के सभी सदस्य अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो, आपका जीवन समृद्ध हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आज बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार और जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत के अंदर भूख का बहुत महत्व है। भोजन का जब भगवान के आगे हम ले जाते हैं तो भोजन प्रसाद बन जाता है। और कहते हैं भोग लगाने से भोगनाएं मिटती हैं। कहते भोजन कई प्रकार का है। एक भोजन जो हम होटल में खाते हैं, वो जब खाते हैं तो कमाने के हिसाब से वो हमें खिलाया जाता है। तो वो कहते हैं आप खाओ और हम कमाएं। तो जो लोग ज़्यादा होटल में खाते हैं उनकी वृत्ति में हमेशा कमाने का भाव रहता है। दूसरा भोजन है मंदिर का प्रसाद, आश्रम का भोजन, प्रसाद, भोग। जब हम बाजार से रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हम कहते हैं हमारे घर में आज प्रसाद है, आज भोग बनेगा, प्रसाद बनेगा। तो उसके जो वाइब्रेशन होते हैं बहुत शुद्ध होते हैं और थोड़ा सा भी हम खाते हैं ना हमारा हृदय शुद्ध होता है। तीसरा भोजन है जो हमारे घर में बनता है, उसमें भी माँ बनाती है और कुक बनाता है। कुक बनाता है तो मजबूरी से, माँ बनाती है बोलो एक रोटी और बना दो, कितना प्यार भर देती है उसके अंदर। तो हमारे यहाँ पर भोजन का महत्व है कि किस मानसिक वृत्ति से भोजन बनाया जा रहा है। जिस मानसिक वृत्ति से बनाया जा रहा है, भगवान की याद में बनाया है, तो खा के हमें बल मिलेगा। तो आज जो यहाँ ब्रह्मा भोजन होगा उसका थोड़ा थोड़ा सा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और ये हम संकल्प से, क्योंकि भगवान तो परम धाम में रहते हैं, हम तो यहाँ हैं, तो मन से हम ये भोग ले जाएंगे कि बाबा आपके भंडारे का बनाया हुआ ये प्रसाद है, आप इसको स्वीकार करें। और बाबा इसमें शक्ति भरेंगे, इसकी खुशबू लेंगे कि कितने प्यार से इसको बनाया है और कितनों का इसमें सहयोग है, धन का, तन का, मन का। तो वो सारा परमात्मा शक्ति भरते हैं और फिर ये सब में मिला देते हैं। चावल को चावल में मिला दिया, मिठाई को मिठाई में, दाल को दाल में, और फिर वो पूरा ही प्रसाद बन जाता है। और जिसको खा के हमारा हृदय शुद्ध होता है,
तो हमारे यहाँ तो ऐसे सेंटर में हमेशा हम भोग लगा के ही खाना खाते हैं, और एवरी थर्सडे हमारे यहाँ स्पेशल भगवान को भोग लगाया जाता है, शिव बाबा को। तो आज तो महाशिवरात्रि है, तो आज बिना भोग लगाए कैसे रहेंगे? तो अभी हम सब मिलकर अपने उस पिता के पास इस भोजन को ले जाएंगे संकल्प से कि बाबा आपके भंडारे का भोजन मैं लाई हूँ, आपका भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। तो ऐसे करके हम बाबा के आगे रखेंगे, बाबा शक्ति भरेंगे और फिर सभी भोजन स्वीकार करेंगे। एक गीत बजेगा और उस गीत के साथ हम सभी मन से ऊपर चलेंगे। ठीक है?